Assalamu alaikum everyone. Let's start with October-November 2021 paper, variance 42. Okay. Let's see what we have in the paper. Okay. So now we have radium is a group 2 element. The predicted lattice energy of radium sulfide is this. Define lattice enthalpy. So it's easy. Enthalpy change occur when 1 mole of ion its solid is formed. From its gaseous cation and anion. And anion. All right. Some data relating to radium and sulfur are listed. Select relevant data from this list for use in answer to part B and E. Okay. सबसे पहली बात आपको फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम दिया हुआ है, आपको सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी भी दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर दिया हुआ है, एटोमाइजेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दी हुई है, राइट, और लैटिस एनर्जी भी दी हुई है. ओके, तो हम सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, and also it is the atomization of radium. It is the sum of all. Okay. Similarly, इसमें आपके पास atomization of sulfur है, first electron affinity of sulfur and second electron affinity of sulfur. ये उसका overall answer है, right? ये याद रखिएगा. वो आपसे question कर रहे हैं. Write an equation for the process corresponding to the second electron affinity of sulfur. Include state symbols. तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं, तो ये होगा सल्फर गैसियस आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा S2 माइनस आयंस में. ऑलराइट, तो 1 mole of gaseous ion when gain 1 mole of an electron, then this process is called second electron affinity. Okay. Now the next is sulfur exists as S8 molecule in the solid state. Use the data in this question to calculate the enthalpy change for the reaction. Okay. Calculate the enthalpy change for this reaction. So it means कि मैं यहाँ पर साइकिल बना सकता हूँ कुछ इस तरह से. ये मेरे पास S8 है और ये कन्वर्ट हो गया 1 mole of gaseous sulfur atom में, तो मैं यहाँ पर 1/8 कर देता हूँ, right? We need to find out the value of this reaction. By the way, हमें दो चीजें गिवन है. हमें गिवन है फर्स्ट सल्फर की फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सही है. सो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज गिवन minus 200. Second electron affinity of sulfur is given, which is plus 532. By the way, ये भी given है हमें, right? इसमें आपके पास solid है, तो पहले solid से gas हुआ तो atomization, फिर first और second electron affinity, तो sum of all. तो sum of all के लिए हम ये use करेंगे value, तो हम यहाँ लिख देंगे plus 555, राइट. हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो लिया है. ऑब्वियसली ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, प्लस, ये वैल्यू होगी माइनस, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को अरेंज कर देते हैं. ये हो जाएगा x प्लस माइनस 200 प्लस 532 माइनस प्लस 555
equals to 0, y equals to 0 because I need to find out the value of this. तो ये हो जाएगा x minus 200 plus 532 minus 555 equals to 0. Then x equals to plus 223, right? Kilojoules per mole. Thing is कि जो एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में हमारे पास 8 मोल्स हैं, 8 moles of sulfur gaseous atom. ओके, सो मैं फर्दर कैलकुलेशन करूंगा. कैलकुलेशन ये है मेरे पास कि 1 मोल में मेरे पास कितनी एनर्जी आई है, प्लस 223 kilojoules. If we have 8 moles of gaseous sulfur atom, so we have plus 223 into 8 is going to be plus 1784 kilojoules, right? तो यहाँ हो जाएगा plus 1784 kilojoules per mole. All right. Now the next part of the question is calculate the standard enthalpy change of formation of radium sulfide. So we can make the Hausdorff cycle for this. ये है gaseous radium ion reacting with gaseous sulfide ion converting into radium sulfide solid. ये आपकी लैटिस एनर्जी है और इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू दी हुई है -2612. ओके, हम सब जानते हैं कि ये आपके पास सॉलिड रेडियम, ये आपके पास गैसियस सल्फर एटम, सल्फर सॉलिड एटम, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे रेडियम सल्फाइड में. ये फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ओके, दैट्स योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. एंड ऑब्वियसली सल्फर S8 होता है तो मैं यहाँ पर S8 लिख लेता हूँ. एंड ऑब्वियसली मैं इसको 1/8 कर देता हूँ, ये सॉलिड हो जाएगा. सही है, इट मेक्स सेंस नाउ. अगर हम रेडियम से रिलेटेड बात करें तो रेडियम की एटोमाइजेशन मिलेगी हमें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी. सो ओके, तो रेडियम से रिलेटेड यार ये सुनिएगा जरा बात. एटोमाइजेशन ऑफ रेडियम प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम plus second ionization energy of radium is going to be plus 1619 kilojoules per mole. अब जाहिर सी बात है ये गैसियस सल्फर एटम है, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, तो ये एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, इन सब का सम कितना दिया हुआ था एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर. ये सम दिया हुआ था 1690 और ये दिया हुआ है 555. हम 555 ले लेते हैं. सही है, ये वैल्यूज प्लस ये वैल्यूज माइनस इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -2612. फिर है आपके पास प्लस 1619 प्लस 555. ये वैल्यूज तो आपकी प्लस हो गई सारी, ये वैल्यूज माइनस होगी. डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से डेल्टा एच एफ की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आपके पास से -438. तो हम यहाँ लिख देते हैं -438 kilojoules per mole. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. State two major factors that affect the numerical magnitude of the lattice energy. तो बेटा हमने आपको बताया है charge of the ion, और हमने आपको बताया size of the
ion, right? फिर वो कह रहे हैं आपसे for each factor you have identified in E1, state whether it tends to make the lattice energy of radium sulfide more or less exothermic than that of sodium chloride. Explain your answer. जाहिर सी बात है, रेडियम का आयनिक रेडियस ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी. जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है बिटवीन द आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वीकर होगी. ओके, जिसकी वजह से लेस एक्सोथर्मिक होगी लैटिस एनर्जी. तो हम यहाँ लिख के दे सकते हैं रेडियम आयन has large ionic radii than sodium ion. So radium sulfide exhibits weak electrostatic attraction और जब weak electrostatic attraction होगी then lattice energy of radium sulfide becomes less exothermic. ठीक है. आप यहाँ पर एक और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेस चार्ज डेंसिटी. ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं. Next is the lattice energies of sodium chloride and radium sulfide are minus this and minus this kilojoules per mole respectively. Identify the dominant factor in determining the relative numerical magnitude of the lattice energy of radium sulfide and sodium chloride. जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि ये दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो है वो चार्ज ऑफ द आयन है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी जो है वो मोर एक्सोथर्मिक होगी. So charge of the ion is a dominant factor thus sodium ion has high charge density radium ion has high charge density, hence its lattice energy is more exothermic or is highly exothermic. Okay, so radium का चार्ज ज्यादा है, इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी भी हाईली exothermic. I hope it makes sense to you. That's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Ethoxyethane has a formula, can dissolve both in water and in octane 1-ol. The expression and numerical value of the partition coefficient of ethoxyethane between water and octane 1-ol are given. Water and octane 1-ol are immiscible. Okay. वैसे अल्कोहल एक्सिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये इसलिए इमिसिबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. ओके, ये याद रखना. Because of long hydrocarbon chain, octane 1-ol has a strong hydrophobic character, which is why octane 1-ol and water are both immiscible with each other. Guys, Kpc की जो value है for this is given at this temperature.
In an experiment, octane 1-ol at 20 degrees Celsius is added to a solution of ethoxyethane in water at 20 degrees Celsius. The mixture is analyzed immediately and the value of the KPC is calculated. The calculation is performed correctly. The value calculated is 5.625. Explain why the value calculated is less than 6.760. हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं केपीसी की वो एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, राइट? तो अगर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की और ये वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया होगा रिएक्शन में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर गया जिसकी वजह से ये वैल्यू कम होगी, ये भी कह सकते हैं आप। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हम दोनों बातें लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन of ethoxyethane in water is larger also KPC always measured at equilibrium hence lower value means equilibrium has established. Okay. A second experiment is performed and the value of KPC is found to be this. The concentration of ethoxyethane in the octane 1-ol layer is 7.62 gram per dm cube. Calculate the concentration in gram per dm cube of ethoxyethane in aqueous layer. Okay, तो मुझे basically, oh, that's an easy question. मुझे ये फॉर्मूला गिवन है, मुझे केपीसी की वैल्यू गिवन है, मुझे ऑक्टेन 1-ol की कंसंट्रेशन गिवन है, तो ऑब्वियसली मैं ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ. जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला हमारे पास केपीसी इक्वल्स टू concentration of ethoxyethane in octane 1-ol over concentration of ethoxyethane in water. KPC की value is given, that is 6.760. Octane 1-ol की concentration is given 7.62 divided by x. तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1.127. तो यहाँ लिख देते हैं 1.127. ऑलराइट. Okay. 100 cm cube of octane 1-ol layer is taken and shaken with 100 cm cube of water. Calculate the maximum amount in mole of ethoxyethane that can be extracted into the water. And it has 3 marks. So a lot of calculation I must say. मुझे actually 1D, मुझे 1000 cm cube में ये concentration given है. तो अगर मुझे 100 cm cube given है तो मैं mass determine कर लेता हूँ. That is going to be the first step. कि आपके पास 1000 cm cube, that is 1 dm cube में कितना मास है? 7.620 ग्राम, 7.62 ग्राम. सो अगर एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन में 100 cm cube दिया था तो बताइए मास कितना होगा?
ये मास ऑफ ऑक्टेन 1 मोल हो जाएगा in 100 cm3, which is 0.762 gram. Okay. That is my first step. In the second step, we have two different layers, एक organic और एक aqueous है, right? This is our aqueous layer and this is our organic layer. Okay. अब aqueous layer में जब आपने 100 cm क्यूब ऑफ aqueous layer यूज की तो भाई इनिशियली तो मेरे पास 1.127 ग्राम था, राइट? उसमें से वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ ये मुझे नहीं पता, तो मैं वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है एथॉक्सीथेन मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एक्स लिया। अब मेरे पास इनिशियल मास कितना था 0.762 ग्राम, उसमें से एक्वस में कितना डिसॉल्व हो गया एक्स, तो बच कितना जाएगा, तो 0.762 माइनस एक्स। सही है, केपीसी का एक्सप्रेशन हमें पता है, तो हम उसमें ऑर्गेनिक ओवर वाटर लिखेंगे, तो 0.762 माइनस एक्स ओवर एक्स। केपीसी की वैल्यू हमें गिवन है 6.760। ये x वहां पर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6.760 x इक्वल्स टू 0.762 माइनस एक्स। एक्स को वहां ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.762 इक्वल्स टू 7.760 x, राइट? तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.762 डिवाइडेड बाय 7.760, so it's going to be how much, 0.0982 gram. That is the mass of ethoxyethane in aqueous layer. Okay, now in the third step MR मुझे चाहिए ethoxyethane का, and that is going to be 74, I believe, right? 29 plus 29 plus 16 is basically 74. Okay, तो मैं यहां से फोर्थ स्टेप मैं यहां से मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। मोल्स ऑफ इथॉक्सीथेन कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए 0.0982 डिवाइडेड बाय 74, तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे 0.0013 मोल्स। मैं इन मोल्स को उठाकर यहाँ लिखूंगा क्योंकि ये मुझसे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है? ओके, now the next part of the question is an aqueous solution of lead to nitrate is mixed with an aqueous solution of sodium iodide. A yellow precipitate of lead to iodide is formed and is filtered out, leaving solution X. Okay, the concentration of lead ions is 5.62 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. The concentration of iodide ion is 4.20 times 10 to the power minus 4 mole per dm cube. Use this data to calculate a value of the solubility product for lead to iodide. State the units of KSP. That's what we have done in the class. The exact same sort of numerical we have done in the class. Okay, so I hope कि आप इसको manage कर सकते हैं बहुत conveniently. Okay, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं lead to iodide की equation बनाऊंगा। इक्वेशन बनाने के बाद इसको डिसोसिएट करेंगे इनटू लेड आयंस प्लस आयोडाइड आयंस। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो अगर आपके पास लेड टू आयोडाइड ओके लेड आयन की कंसंट्रेशन है और ये 2 मोल है,
तो गाइस लेड आयन की कंसंट्रेशन आपके पास सेम आ जाएगी क्योंकि 1:1 का रेशियो है। सही है, that is 5.68 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube। अब आप जानते हैं मोल पर डीएम क्यूब को मैंने मोलर लिखा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप जानते हैं कि मुझे आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन भी गिवन है, सो मैं आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को क्या करूंगा, 4.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 मोल्स है, राइट। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4.20 एक्सपोनेंट माइनस 4 into 2, it's going to be 8.4 into 10 to the power minus 4 मोलर। अब मुझे कंसंट्रेशन पता चल गई लेड आयन की इन मोल पर डीएम क्यूब, मुझे आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। नाउ आई नीड टू प्लग इन दीज वैल्यूज इन द केएसपी एक्सप्रेशन ऑफ लेड टू आयोडाइड, व्हिच इज KSP equals to concentration of lead ions times concentration of iodide ions. Since it has 2 mole in the equation, we need to square it, right? Now plug in these values, 5.68 into 10 to the power minus 3, then iodide ion आपके पास है 8.4 exponent minus 4 का square. Let me calculate the value of KSP from here. Oops, 8.4 का square करेंगे तो याद आएगा into 5.68 exponent minus 3 is going to be 4.00 exponent minus 9, तो 4.00 exponent minus 9 यूनिट हो जाएगा मोल क्यूब dm minus 9। let me double check my calculation, okay। 8.4 exponent minus 4 square is going to be this, multiply by 5.68 exponent minus 3, या 4.01 एक्चुअली मेरे राउंड ऑफ करूं तो 4.01 आएगा मेरे पास। इट्स राउंड ऑफ करूंगा तो 4.01 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 9 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, 4.20 5.68 into 10 to the power minus 3। ठीक है, let me check one more time। 8.4 exponent minus 4 multiplied by 8.4 exponent minus 4, yeah, I'm right, 5.68 exponent minus 3, but that's the answer, okay। That's what it is actually। ट्रिपल चेक कर लिया मैंने, आंसर यही है 4.01 into 10 to the power minus 9। Now potassium iodide is very soluble in water, okay। Describe and explain what is seen if a few drops of saturated potassium iodide solution are added to a portion of solution X। So that's called common ion effect, I believe। Just hold on a second, please। 4.2 exponent minus 4 square into 6 exponent. Oops, how come? मैंने यहाँ एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 2 किया है बिकॉज इट हैज 2 मोल्स, राइट। एग्जामिनर ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बनता है। Concentration of iodide is given। Oh, we don't need to multiply by 2 actually because
ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करके दी हुई है उन्होंने, ठीक है। ओके, सो हम इसको एज इट इज रखते हैं। हम इसको भी एज इट इज रखते हैं। 4.20 into 10 to the power minus 4 का स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.00 into 10 to the power minus 9। दैट्स ट्रिकी पार्ट को बहुत केयरफुली रीड करना है कि ये कंसंट्रेशन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम दे दी है उसने आपको, ठीक है। यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हमारे पास लेड टू आयोडाइड की इक्वेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो जाएगा हमारे पास लेड टू आयंस प्लस 2 आयोडाइड आयंस। ओके, अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। So this increases the concentration of iodide ions, favors the equilibrium towards left hand side. Hence, solubility decreases while precipitation increases. So हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बेटा, और जाहिर सी बात है जब लेड टू आयोडाइड बनेगा तो इसके येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एडिशन of potassium iodide, concentration of iodide ions increases. This favors equilibrium towards left hand side. Hence, solubility decreases. Precipitation increases. That means lead to iodide ions जो है वो increase होना शुरू होंगे, और lead to iodide का कलर क्या होता है? Yellow. So precipitation increases. Hence, yellow color is observed. ठीक है? That's the end of question number 2. Let's talk about question number 3. Pure water is a very poor conductor of electricity. However, when hydrogen chloride gas is dissolved in water, ions are formed and a current flows during electrolysis. The overall change after electrolysis is that hydrogen chloride gas is converted into hydrogen and chlorine. When a current of 3.10 ampere is passed through a solution of y minutes, इसका मतलब हुआ we need to find out the minutes, right? 351 cm cube of chlorine are produced at anode measured under room condition. तो अगर ये एनोड पे प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब एट एनोड क्लोरीन की इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, और ये इक्वेशन आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो जब ऑक्सीडेशन होती है तो इक्वेशन ये बनेगी, राइट? वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। सो मेरे पास वॉल्यूम गिवन है ऑब्वियसली, तो मैं मोल्स ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट कर लूंगा। दिस इज 351 डिवाइडेड बाय 24,000। तो 351 को जब 24,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.015 मोल्स। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें एवोगाड्रो कांस्टेंट अप्लाई करना है। तो 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। और अगर आपके पास 0.015 मोल्स हैं तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ रहा है
It's basically 8.8 into 10 to the power 21. ठीक है जनाब? Oops. मेरे पास 8. Just hold on a second. 351 divided by 24,000. 0.01. Okay, okay, okay. Round off okay है. ये वैल्यू राउंड ऑफ होके लिखी है मैंने. हाँ, 0.0146 है, मैंने 0.015 किया है, उसी के हिसाब से. ओके, 6.02 exponent 23 into 0.015 is going to be 9.03 times 10 to the power 21. Okay, that's the answer. उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो एट एनोड वाली इक्वेशन लिखेंगे हम. यहाँ क्लोराइडाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन. ये 2 मोल, ये 1 मोल. आपने 9.03 इंटू 10 टू द पावर 21 मोल्स कैलकुलेट किए, तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 9.03 इंटू 10 टू द पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1.806 into 10 to the power 22. हम यहाँ लिख देंगे 1.806 times 10 to the power 22. फिर वो कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेटेड इन बी. तो भाई 1 mole of electron carries how much charge? 1.6 times 10 to the power minus 19 coulombs, right? अभी आपके पास कितना है? 1.806 into 10 to the power 22 moles of electron gives you how much? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 2889.6. मैं रखूंगा 2889.6. ठीक है, दैट्स द इजीएस्ट स्टेप. Calculate the time in minutes for which the current flows. तो ये हो जाएगा चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम. चार्ज हमारे पास है 2889.6 डिवाइडेड बाय करंट. करंट हमारे पास कितना था क्वेश्चन के अंदर? 3.10 एम्पियर. ये टाइम, तो ये हो जाएगा divided by 3.10. It's going to be 932.12 seconds. एग्जामिनर हमसे मिनट्स में मालूम करवा रहा है, तो भाई 1 मिनट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. आपने 932.12 सेकंड्स लिए, तो बताइए मिनट्स कितने होंगे? उसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, so it's going to be 15.5 minutes. ओके, 15.53 आ रहा है मेरे पास, तो 15.53 minutes ये आ रहा है मेरे पास. ठीक है, 15.53 minutes. Let me check my calculation again. ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई गड़बड़ की हो. 351 divided by 24,000, so it's going to be 0.0146. मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिखा है यहाँ पर. Then multiply किया 6.02 exponent 23 से, तो 8.80. oops, क्या? My goodness, what I did. No. 0.015 into 6.02 times 10 to the power 23.
ओ यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से 1.80, दैट्स आल्सो राइट। जो मैंने वैल्यू ली हुई है ना, इसके लिहाज से ये सारे आंसर आ रहे हैं। अगर मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा तो फिर आंसर डेफिनेटली डिफरेंट आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो मेरे पास आंसर है 2, दैट्स आल्सो राइट। डिवाइडेड बाय 3.10, divided by 60, that's also right. So my calculation is perfect. Next, the standard entropies of the three species are given in the table. All right, calculate delta S naught for the reaction. Okay, easy. Delta S naught equals to product minus reactant. So product में हमारे पास हाइड्रोजन है, which is plus 131, chlorine है, which is plus 223, minus reactant में हमारे पास है plus 187, and since we have 2 mole in the equation, इसलिए multiply by 2 करेंगे। ओके, याद रखिएगा ये 2 मोल है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो यहाँ से डेल्टा एस नॉट हमारे पास आ रही है 131 प्लस 223 माइनस 187 मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी -20। हम यहाँ पे लिखेंगे -20। फिर वो कह रहे हैं आपसे डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक which is plus 185 kilojoules per mole. Calculate delta G naught for this reaction at 298 Kelvin. So temperature given है, delta H की value given है, delta G naught calculate करना है, we can find it. So delta G naught का expression होता है delta H naught minus T delta S naught. Delta H naught मेरे पास है plus 185, टेम्परेचर मुझे दिया हुआ -298 केल्विन। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू मैंने -20 निकाली है, उसको जूल से किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 185 -298 into 20, oops, into -20 divided by 1000, 190.96 आ रहा है मेरे पास, 190.96. Let me recheck. That's plus 190.96. So 190.1 भी कर सकता हूँ मैं इसको राउंड ऑफ करके, लेकिन मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 20 divided by 1000 is going to be this. Multiply by 298 is going to be this. तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस 185, 190.96. Predict the effect of increasing temperature on the spontaneity of this reaction. Explain your answer. अच्छा, जब डेल्टा जी नॉट प्लस होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वो कह रहे हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर स्पॉन्टेनिटी बताओ रिएक्शन की क्या होगी। तो ठीक है, हम बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास एक्सप्रेशन है डेल्टा, बल्कि हम यहाँ लिखते हैं इसको, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। हमारे पास डेल्टा एच नॉट की वैल्यू प्लस थी, ये माइनस एज इट इज, ये टेम्परेचर एज इट इज, और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी माइनस है। अब ये भी प्लस है हमारे पास, और ये ऑब्वियसली माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी टी डेल्टा एस नॉट की टर्म भी प्लस, ये भी प्लस। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इट विल रिमेन प्लस। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन कुछ ऐसे कर देते हैं कि भाई एट हायर टेम्परेचर reaction is non-spontaneous, यानी होगा ही नहीं, as delta G naught will remain
positive even at higher temperature. Okay. And why delta G not remain positive? Because T delta S naught term becomes more positive. Okay. So ये पूरी बात लिखनी थी, इसलिए हमने ये एक्सप्लेन किया आपको, हमने ये क्लास में भी डिस्कशन की हुई है. Let's move on to the question number 4. Separate samples of 0.01 moles of magnesium nitrate and 0.01 moles of magnesium strontium nitrate are heated until completely decomposed to a metal oxide, nitrogen dioxide, and oxygen. Okay, that's easy. Group 2 metal nitrates की decomposition कर रहे हैं. State which of these two group 2 nitrate requires the higher temperature before it begins to decompose. Explain your answer. Higher temperature का मतलब thermally stable है. सही है. Higher temperature का मतलब क्या होगा? Thermally stable. और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप 2 थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. इसका मतलब स्ट्रोंशियम नाइट्रेट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर फॉर द डिकम्पोजिशन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम नाइट्रेट. ठीक है. और उसकी वजह क्या है? स्ट्रोंशियम नाइट्रेट का रेडियस ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम, पोलराइजेशन कम, डिस्टॉर्शन कम. ये 2 मार्क्स के लिए लिखना है हमें. हम यहाँ लिख देते हैं strontium ion has a large ionic radii. It has less charge density. So it has weak polarization. If it has weak polarization, then it means strontium ion cannot distort the electrons of nitrate ions effectively. Hence, strontium nitrate require higher temperature for thermal decomposition. Okay. After decomposition is complete, 0.01 mole of sample of magnesium oxide is taken and increasing amount of water are added to it with stirring until no solid remains. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पर सिचुएशन अब ये बन गई है कि मेरे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैं उसमें वाटर प्लेस कर रहा हूँ और ये कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में. That's what we have done in A1 chemistry, right? फिर वो कह रहे हैं this procedure is repeated with 0.01 sample of strontium oxide. Okay. अब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड अगर मैं ले रहा हूँ और उसको भी मैं वाटर में प्लेस कर दूं तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड में. ऑलराइट. सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोक्साइड्स आ गए. अब हाइड्रोक्साइड्स की ट्रेंड जहन में होना चाहिए और हमने क्लास में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है. राइट. तो वो पूछना क्या चाह रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट. Identify the sample to which most water must be added to cause all the solid to dissolve. Explain your answer by reference to the solubilities and of the products formed when water is added to the oxide. You should refer to relevant energy terms in your answer. Okay. तो जाहिर सी बात है, इससे एक बात तो पता चल रही है मुझे कि भाई डाउन द ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है. राइट. तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड.
तो अगर मुझे सारे का सारा सॉलिड डिसॉल्व करना होगा तो जाहिर सी बात है आई नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर दिस, ताकि ये सारे का सारा डिसॉल्व हो। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि, अच्छा हम इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप टू ऑक्साइड्स का बॉन्ड वीकर हो जाता है। जब बॉन्ड वीकर होगा तो आसानी से टूटेगा, आसानी से डिसॉल्व होगा। तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आसानी से डिसॉल्व होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। क्योंकि वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, विच इज वाई इसको डिसॉल्व करने के लिए वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं। सही है, तो हम इसको लिख देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड में हम कैसे लिखें कि डाउन द ग्रुप magnesium oxide require more amount of water, okay, more amount of water to dissolve. This is because down the group solubility of hydroxides increases और solubility of hydroxide increase क्यों होती है? क्योंकि lattice energy and hydration enthalpy both decreases. But lattice energy decreases more significantly than hydration. And as a result, standard enthalpy change of solution becomes exothermic. और जिसकी वजह से solubility increase हो जाती है। सही? तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं। Next, the nitrogen dioxide given off by the decomposition of 0.01 mole per dm cube strontium nitrate is dissolved in water. The oxidizing agent H2O2 is then added to give 150 cm cube of a solution in which nitric acid is the only nitrogen containing product. Calculate the concentration in mole per dm cube of nitric acid in the 150 cm cube of solution. Okay. तो हम सबसे पहले स्ट्रोंशियम नाइट्रेट की इक्वेशन बना लेते हैं डिकम्पोजिशन की। अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में, राइट? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल है और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो है वो भी 2 मोल है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 मोल है। अगर आपके पास ये 0.0100 मोल है तो बताइए मोल ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0100 into 4 divided by 2. So it's going to be 0.0100 into 4 divided by 2. So it's going to be 0.02. All right? 0.02 moles of nitrogen dioxide. अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे H2O2 के साथ। उसने आपको कह दिया कि भाई एक ही नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब आप नाइट्रिक एसिड बना लीजिए यहाँ से। सही है, एक ही प्रोडक्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग।
अब इशू ये है कि आप नोट करें यहाँ पर भी कितने मोल हैं 1, और आप नोट करें यहाँ पर भी कितने मोल हैं 1। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 0.02 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएंगे आपके पास, सेम हो जाएंगे 0.02 मोल्स, राइट। मुझे तो कंसंट्रेशन निकालनी है, 150 cm क्यूब वॉल्यूम गिवन है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 150 cm क्यूब में हमारे पास 0.02 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हम 1000 cm क्यूब से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Point 0.02 into 1000 divided by 150. मेरे पास ये क्या आया आंसर, पहले क्या आया था, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, पहले क्या आया? मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की। 0.02 into 1000 divided by 150। अच्छा, मेरे पास पहले, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन गलत की थी। आई थिंक आई मिस्ड सम नंबर्स। ये हो जाएगा 0.133। ठीक है, तो गाइस जब भी आप कैलकुलेशन करें डबल चेक जरूर करें, जैसे मैं कर रहा हूं डबल चेक। ओके, next is the nitric acid present in 25 cm cube of this solution is neutralized using 0.125 mole per dm cube NaOH. Calculate the minimum volume in cm cube of NaOH needed. Give your answer to 3 significant figures. तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मैं NaOH और नाइट्रिक एसिड की इक्वेशन लूंगा, दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्ट, दैट इज सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। सही। अब आपके पास कितने मोल्स आए थे, 0.133 मोल्स आए थे, ये कंसंट्रेशन थी ना आपके पास नाइट्रिक एसिड की, ये कंसंट्रेशन, यानी 1000 cm क्यूब में 0.133 मोल्स, और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का 25 cm क्यूब। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। पहला पॉइंट ये बता देते हैं कि 1000 cm क्यूब में आपके पास 0.133 मोल्स थे, जो कि आपने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किए थे नाइट्रिक एसिड के, राइट। नाउ यू हैव 25 cm क्यूब, सॉरी 25.0 cm क्यूब, सो कितने मोल्स हो जाएंगे, लेट्स फाइंड आउट। 0.133 into 25 divided by 1000 is going to be 3.325 into 10⁻³ मोल्स। आप जानते हैं कि NaOH और नाइट्रिक एसिड दोनों का मोलर रेशियो सेम है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। जब भी मोनोबेसिक एसिड यूज होता है, एल्कली और एसिड का रेशियो सेम होता है, 1:1 का रेशियो होता है। अगर आपने 3.325 इंटू 10⁻³ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट किए तो सेम नंबर ऑफ मोल्स NaOH के भी हो जाएंगे, 3.325
into 10 to the power minus 3 moles, right? ये जो moles हैं, अच्छा NaOH की concentration given है आपको, all right? तो हम थर्ड स्टेप ले लेते हैं. थर्ड स्टेप है हमारा कि 1000 cm³ of NaOH contain how much moles? 0.125 moles. How much moles of NaOH we have calculated from the previous part? 3.325 into 10 to the power minus 3 moles. So volume must be volume of NaOH is going to be how much? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से और डिवाइड कर दो 0.125 से, so it's going to be 26.6. So answer is going to be 26.6 cm³. Okay, and that's my answer. Okay, that's the end of the fourth question. Come to the fifth question related to transition elements. Molybdenum has a symbol Mo, forms an octahedral complex consisting of one mono molybdenum atom surrounded by carbon monoxide molecule. CO molecule is a monodentate ligand, मतलब it can forms only one dative bond. ठीक है, monodentate ligand का मतलब क्या होता है? Can form one dative bond because it can donate only one lone pair. One dative bond as it donate only one lone pair. Okay. Now the next is iron forms an octahedral complex consisting of one iron 3+ ions and a number of cyanide ions. Cyanide is also a monodentate ligand. Define the term monodentate. So that's the definition. Okay. Donate one lone pair. So that only one dative bond is formed. All right. Now the next is complete the table by stating the formulae and charges of the complexes described. Molybdenum complex वो कह रहे हैं octahedral complex है molybdenum का. इसका मतलब 6 dative bonds बनेंगे यहाँ पर, right? So 6 dative bonds बनेंगे. Molybdenum का सिंबल है MO. कार्बन मोनोऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि मोलिब्डेनम के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. एंड ऑब्वियसली मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स चार्ज 2+ हो सकता है इस पे. ओके, चार्ज इज गोइंग टू बी 2+. मोलिब्डेनम हैज 2+ चार्ज. वैसे चार्ज 0 चार्ज होना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर ने यहाँ चार्ज से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है. इसका मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा. इट हैज 0 चार्ज. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज पूछ रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम नहीं पूछ रहा. आयरन 3 कॉम्प्लेक्स, तो ये हो जाएगा आयरन 3 कॉम्प्लेक्स. साइनाइड थे, 6 साइनाइड हैं क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल रहा है. चार्ज जो है वो आपके पास 3- आएगा. क्यों? मैंने पहले भी बात समझाई है. आयरन को x ले लीजिए, एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है. 6 है तो इंटू 6 होल चार्ज डिटरमिन करना है. अगर ये होल चार्ज +6 है और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एग्जामिनर ने +3 दी हुई है, तो ऑब्वियसली दिस चार्ज हैज टू बी -3. ओके, इसलिए यहाँ पर 3- है. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. हमने क्लास में भी डिस्कशन की है इससे रिलेटेड कि आप चार्ज कैसे डिटरमिन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हुए. ठीक है जनाब. Draw a 3-dimensional diagram to show the shape of this iron 3 complex. Label 1 180 degree bond angle on your diagram.
थ्री डायमेंशनल डायग्राम का मतलब डॉटेड लाइन पिरामिड शो करनी है, और ऑक्टाहेड्रल है, एक बॉन्ड इस तरह, एक बॉन्ड इस तरह, ये डॉटेड लाइन हो गई, ये पिरामिड हो गया आपका। एंड ऑब्वियसली आपके साथ साइनाइड्स अटैच हैं, तो साइनाइड जो है उसमें लोन पर डोनेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा CN 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 CN, ये भी CN और ये भी CN, लोन पेयर कार्बन डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो भाई बॉन्ड एंगल 180 डिग्री इस तरह से देख सकते हो ना आप इस तरह से भी 180 डिग्री एंगल देख सकते हो, राइट। तो ये 180 डिग्री एंगल है, बल्कि ज्यादा बेहतर है कि लीनियर ज्योमेट्री होती है ना 180 डिग्री एंगल, तो लीनियर तो ये भी है, सही है। तो हम इसको शेड कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि जनाब इसकी वजह से 180 डिग्री एंगल आया। दिस गिव्स यू 180 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज an excess of aqueous ammonia is added to dilute copper to sulfate solution. A dark blue complex is formed. Write an ionic equation for this reaction. Copper to sulfate solution कह रहा है, तो इसका मतलब aqueous copper to ion का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, और वो रिएक्शन कर, और एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो 4NH3 अकॉर्डिंग टू द लेक्चर व्हिच वी हैव डन इन द क्लास, लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एंड एज अ रिजल्ट 4 अमोनिया आ जाएंगे। ये 2 प्लस चार्ज प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो अमोनिया ने 4 वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया है। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की है, ये बेसिकली डार्क ब्लू सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कलर इन कॉपर टू कॉम्प्लेक्सेस। कॉपर टू कॉम्प्लेक्स में 4 मार्क्स का है, ओके, दैट्स लॉट ऑफ डिटेल। तो सबसे पहली तो बात ये कि कॉपर टू आयंस कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर टू आयंस contain partially filled d orbital, okay। फिर हम जानते हैं कि जब लाइगेंड अप्रोच करेगा कॉपर टू कॉम्प्लेक्सेस में, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल takes place as ligand approaches. Alright, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द विजिबल रीजन ऑफ, विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। सो फॉर डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन भी कहते हैं, फॉर डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन absorption of energy takes place in the visible spectrum, right? As a result, complementary color of the hoga, hence its complementary color is observed. Next is an excess of concentrated hydrochloric acid is added to the dark blue solution of
this complex, a new complex Z is formed, the color of the solution changes. Write an equation for the formation of Z from the solution of this, include the formula and charges of Z. Okay, a lot of information actually is asking. So not an issue actually, बहुत आसान है. हम ये complex लिखते हैं, Cu NH3 taken 4, H2O taken 2, and this is going to be 2 plus charge. रिएक्शन किससे हो रहा है? ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम पहले भी बता चुके हैं कि क्लोराइड जो है वो लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, इन दोनों लाइगेंड्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हमने CuCl4 2- कहा था, जिसकी वजह से कलर येलो हो गया था, राइट. यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, अलर्ट रहना, और यहाँ से 4 अमोनिया आ जाएंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास सोल्यूशन एसिडिक है और ये एल्कली है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली ये बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट का मतलब अमोनियम आयंस. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैं यहाँ पर 4 करूंगा बैलेंस करने के लिए. ठीक है, इस तरह से 4 हाइड्रोजन आयंस 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 4 अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट्स हाउ वी नीड टू मेक द इक्वेशन. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन Z is formed from this ligand substitution reaction. ligand exchange reaction भी कह सकते हैं आप इसको. State the geometry of Z. टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि Ml4 सिस्टम है. अगर आपको याद है मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा देखो उस पे लाइगेंड क्या है. ट्रांजिशन एलिमेंट को M कहा, लाइगेंड को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो जब भी ये सिचुएशन बनती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. और आपको पता है जब CuCl4 2- बनता है तो कलर येलो होता है, राइट. Explain why the color of a solution of this is different from the color of a solution of Z. अब जाहिर सी बात है इसमें लाइगेंड्स डिफरेंट हैं और इसमें लाइगेंड डिफरेंट है, तो जब लाइगेंड डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग भी डी ऑर्बिटल की डिफरेंट होगी. तो डिफरेंट लाइगेंड means different splitting pattern of d orbital. तो जाहिर सी बात है जब स्प्लिटिंग पैटर्न डिफरेंट होगा डी ऑर्बिटल का तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी डिफरेंट रीजन के अंदर होगी. सो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन photon of specific frequency is needed. All right, so that's the end of our question number 5. Let's move on to the question number 6. Again, it belongs to transition element. That's the examiner favorite area, I believe. Excess of aqueous ammonia is added to a solution containing complex ions. ये इक्वेशन आपके पास है, इसमें ligand substitution reaction है. Cobalt 2 ions. Complete the sentence to describe the color change that will be seen during this reaction. तो भाई describe the color change that will be seen. तो इसका कलर होता है पिंक और इसका कलर होता है ब्राउन, तो पिंक टू ब्राउन. Now the next is write an expression for the solubility constant of this. Okay, not a big deal. Equation हमें given है, concentration of product. तो मैं प्रोडक्ट में इस कॉम्प्लेक्स को लिखूंगा, ये हो जाएगा अमोनिया टेकन 6 एंड ऑब्वियसली दिस चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट, ताकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है हमने ये फिर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें, राइट. वाटर को हम कभी भी नहीं लिखते, इग्नोर कर दीजिए उसको.
ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में फिर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे हम कोबाल्ट का, जिसमें वाटर एज अ लाइगेंड यूज हो रहा है, चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट। अमोनिया, अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर में चले जाएंगे, दैट इज 6। ठीक है। Now the next is the numerical value of K step of this complex is 7.7 into 10 to the power 4. What deductions about the properties of both the complexes can be made from this K step value? जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू हायर है, इसका मतलब इस अमोनिया कॉम्प्लेक्स से बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म from ammonia, that is CONH3 taken 6 2 plus is more stable because of higher stability constant value. उसके बाद है oxygen can oxidize this complex to this under standard condition in alkaline solution. Okay, और इसकी E naught की वैल्यू गिवन है। Use this information in the data booklet to calculate the E naught cell for the oxidation of this. Alkaline solution वाली इक्वेशन चाहिए तो हम डेटा बुकलेट के अंदर जाएंगे, alkaline solution वाली इक्वेशन लेंगे। ये हो जाएगा O2 plus 2H2O plus 4 electron रिवर्सिबल साइन 4OH माइनस। ये इक्वेशन डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है। कुछ मुझे इक्वेशंस याद हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। इसकी एससीपी की वैल्यू भी मुझे याद है, इट इज प्लस 0.40 वोल्ट, आइदर प्लस 0.44 और 0.40 वोल्ट। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, अभी पता चल जाएगा। 0.40 प्लस 0.1 0.40 minus 0.1, या ठीक है 0.40 इज परफेक्ट। ये मुझे याद थी इक्वेशन इसलिए मैंने लिख दी है। ये इक्वेशन हमें गिवन है। ओके ओके, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। एक्चुअली एग्जामिनर ने ना मुझे सिर्फ 2 लाइनें दी हुई, यानी एक लाइन में ओवरऑल इक्वेशन लिखो वर्किंग दिमाग में करके, और एक लाइन के अंदर तुम ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। सो ये सारी वर्किंग करने की जगह दी नहीं है एग्जामिनर ने मुझे, बट मैं यहाँ पर आपको बात समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ताकि आपको बात समझ में आए कि भाई हम क्वेश्चन वर्बली कैसे करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, इसकी एससीपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव है। इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज रखना है, इस इक्वेशन को मैंने फ्लिप करके लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बट वो मुझसे यहाँ पर ई नॉट सेल मांग रहे हैं, ओवरऑल इक्वेशन तो नहीं मांग रहे। तो मैं अब ई नॉट सेल निकालने का तरीका ये कर देता हूँ कि ये हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट में हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू जो मोर पॉजिटिव हो, विच इज 0.40 वोल्ट। ई नॉट लेफ्ट में वो वैल्यू होती है जो कि लेस पॉजिटिव होती है, दैट इज 1.10 वोल्ट। तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी प्लस 0.30 वोल्ट। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 0.30 वोल्ट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वो आपसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं और अगले पेज पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इक्वेशन पूछ भी रहे हैं आपसे, ये पूछ ली उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाए। ठीक है, इक्वेशन फ्लिप होने के बाद। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आई ट्राई, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं सिंस आई डोंट हैव एनी स्पेस। तो हमने इसको एज इट इज रखा,
अब इस वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिख रहे हैं ताकि रिएक्शन कोबाल्ट 2 आयंस के साथ हो। सही है, जाहिर सी बात है मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो। अब मेरी फाइनल इक्वेशन होगी और फाइनल इक्वेशन में लिख रहा हूं कुछ इस तरह से 4 CONH3 taken 6 2 plus O2 plus 2H2O एरो। ये हो जाएगा आपके पास CONH3 taken 6 3 plus 4OH minus and that's my answer. Okay, ये आयनिक इक्वेशन को पूछ रहे थे आपसे। फिर वो पूछ रहे हैं आपसे by predict by selecting suitable data from the data booklet whether oxygen can oxidize cobalt 2 ions in acidic solution in the absence of ammonia. Explain your answer. Okay, तो acidic solution की इक्वेशन देखनी है मैंने। O2 plus 4 hydrogen ion plus 4 electron. Some of the data of periodic table I still remember, which is why I'm using this. ये है डेटा बुकलेट में इक्वेशन गिवन होगी एग्जैक्टली और इसकी एसिड की वैल्यू होगी प्लस 1.23 वोल्ट। ओके, और वो कह रहे हैं आपसे कि कोबाल्ट 2 आयंस को करना है। तो कोबाल्ट 2 आयंस मैंने कहा था कि जब भी आयनिक यूज करेगा कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 2 बोलेगा तो आयनिक इक्वेशन यूज करेंगे। तो आयनिक इक्वेशन डेटा बुकलेट के अंदर जो गिवन है कोबाल्ट की वो ये है आपके पास एंड आई बिलीव इसकी एसिपी की वैल्यू है प्लस 1.80 वोल्ट या 1.83 वोल्ट। 1.82 volt, in fact 1.82 volt. That's the value given in data booklet. I was very close. Anyhow, आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है मुझे इस इक्वेशन को एज पर रूल एज इट इज रखना है, इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिखना है। जब मैं फ्लिप करके लिखूंगा तो जाहिर सी बात है कोबाल्ट 3 आयंस वाटर से रिएक्शन कर रहा होगा, राइट? जबकि रिएक्शन किसको करना है? कोबाल्ट 2 आयंस को ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये तो हो ही नहीं रहा रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा ये तो। ओके, आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि मुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। किसको? कोबाल्ट 2 आयंस को। इसका मतलब आई नीड टू फ्लिप दिस इक्वेशन। इफ आई नीड टू फ्लिप दिस इक्वेशन, इसकी वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी और अगर वैल्यू -1.82 हो गई तो जाहिर सी बात है ओवरऑल आंसर भी माइनस में ही आएगा। और जब ओवरऑल आंसर माइनस में आता है इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल नहीं होता। आप ऐसे भी सोच सकते हैं बात को, ठीक है? तो दोनों केसेस में रिएक्शन तो नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? Because for a reaction cobalt 2 ions has to be on the reactant side, so we need to flip the equation and value and its E naught value. Wait, so थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। E naught value, hence E naught cell becomes negative, which is not possible, ठीक है? अगर E naught value नेगेटिव होगी इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। Hence to flip the equation, ठीक है? That's the end of question number 6. Let's move on to the next question. That is question number 7. My goodness.
The structure of benzene 1,3-dicarboxylic acid is shown. State the empirical formula of benzene 1,3-dicarboxylic acid. सबसे पहले तो कार्बन एटम्स काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम्स हैं यहाँ. ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ. राइट. लेट्स काउंट ऑक्सीजन. 1 2 3 4 ऑक्सीजन है यहाँ. तो अगर मैं इन सब का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा C4H3O2 एंड दैट्स माय आंसर. यही मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है. इसको यहाँ लिख दीजिए उठा के. सही है. हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. Okay. Now the next is benzene 1,3-dicarboxylic acid is an isomer of benzene 1,4-dicarboxylic acid. These two isomers can be distinguished by carbon-13 NMR spectroscopy. State the number of peaks in the carbon-13 NMR spectrum of each compound. Okay, ये है 1,3. चलें 1,3 को देख लेते हैं. कोई इशू नहीं है इसमें. एक काम करते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. यहाँ रखते हैं. ठीक है, चलो देखिए. ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट सेम. ये भी सेकंड कार्बन, ये भी सेकंड कार्बन, दोनों का एनवायरनमेंट सेम. इसका थर्ड, क्योंकि ये दो फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में. ये भी थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ. सही है. तो बेसिकली यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स हैं जो कि C13 को रिप्रेजेंट करेंगे. 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को मैं बना देता हूँ यहाँ. 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास ये है. यह आ जाएगा COH और ये भी हो जाएगा COH. ठीक है, ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, क्योंकि सेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच. ये भी सेकंड कार्बन, ये भी सेकंड कार्बन. जितने डिस्टेंस से ये दो कार्बन एटम COH से अटैच हैं, उतने ही डिस्टेंस से ये दोनों कार्बन एटम भी COH से अटैच हैं. इसका मतलब इधर टोटल केमिकल एनवायरनमेंट 3 होंगे मेरे पास. ऑलराइट. Next is benzene 1,3-dicarboxylic acid can be made by the two-step synthesis shown below. Name compound P. भाई अगर बेंजीन के साथ COH ग्रुप लग जाए तो उसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है. हमने ये क्लास में आपको बताया है बेंजोइक एसिड. Next, explain why the major product of this two-step synthesis is benzene 1,3-dicarboxylic acid, not benzene 1,4-dicarboxylic acid. This is because ये जो आपके पास COH ग्रुप लगा है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लेके जाएगा, दैट इज थर्ड और फिफ्थ, इसलिए यहाँ थर्ड पे लगा हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे कि COH is a meta directing group. Right? It directs the electrophile towards meta position, that is 3 and 5. Okay. Next, the reagent used for step 1 are ethanol chloride and AlCl3. These reagents give rise to a siline which reacts with compound P. Name the mechanism of this reaction. Electrophilic substitution reaction. Obviously benzene पे होने वाले तमाम reactions electrophilic substitution reactions होते हैं. Okay,
उसके बाद है ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसाइल आयन विद कंपाउंड पी, include all relevant curly arrows and charges, structure of the intermediate and structure of the compound Q. That's easy. ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये है COOH, यहाँ H, यहाँ COCH3। तो जिस कार्बन के साथ आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया उसको छोड़ के बाकी सबको डॉटेड लाइन प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट करें। ये इनटू द रिंग शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगी। प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सजेस्ट reagent and conditions to convert compound Q into benzene 1,4,3 dicarboxylic acid in step 2. ओके गाइस, आपके पास है क्या इस कंपाउंड Q में CH3CO ग्रुप अटैच है और आप इस ग्रुप को कन्वर्ट करना चाहते हैं COOH में, तो आप आइडोफॉर्म का टेस्ट करेंगे क्योंकि जहां CH3CO ग्रुप एक साथ होता है वहां आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये रिएजेंट्स हो गए मेरे पास, कंडीशन हो जाएगी हीट, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप यहाँ रिमाइंडर के तौर पे लिख लीजिए इफ CH3CO group is attached together, then they will give positive test of iodoform. ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जब आप आइडोफॉर्म यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है NaOH की वजह से सॉल्ट बनेगा। आपने क्लास में ये बात बताई है, बिल्कुल बताइए मैंने क्लास में कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो इस NaOH की वजह से सॉल्ट बनेगा। तो सर वो तो सॉल्ट बन जाएगा, हमें तो COOH चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप यहाँ आगे लिख दीजिए फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सही है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये आ गया आपका, सही है। तो फिर आपको COOH मिलेगा, फिर सॉल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, alanine and glutamic acid both are amino acids. Alanine exists as two optical isomers. Draw three-dimensional structures of these two optical isomers. Okay. Dotted line pyramid बनाना है मैंने। इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा। Okay, you need to mention the group. तो ग्रुप वैसे तो रूल्स हैं ग्रुप को मेंशन करने के, you know that, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई से भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर रहा हूँ क्योंकि काफी डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पर CH3 अटैच कर देता हूँ, मैं यहाँ पर NH2 अटैच कर देता हूँ और मैं यहाँ ऑब्वियसली H। अब मैं इसको फ्लिप करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं फ्लिप करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा COOH, this is going to be NH2, this will remain H, this is going to be CH3. Okay. The proton NMR spectrum of either alanine in D2O or glutamic acid D2O is shown. Okay. याद रखिएगा कि ये जो पीक है ये डबलेट है, एंड ऑब्वियसली ये वाली जो पीक है ये क्वाड्रेट है, ठीक है।
वो कह रहे हैं स्टेट whether this is the spectrum of alanine in D2O or the spectrum of glutamic acid in D2O. Explain your answer by reference to the number of peaks and splitting pattern. Okay. सबसे पहले तो alanine का स्ट्रक्चर लिखते हैं. alanine की बात कर लेते हैं. This is NH2 CH CH3 COH, right? स्प्लिटिंग पैटर्न उसने सिर्फ और सिर्फ पीक्स का दिया हुआ है. उसने पहले तो हम कंप्लीट निकालते हैं. सही है. ये क्या देगा आपको? सिंगलेट. n+1 रूल लगा रहा हूं मैं. हाँ, इसके नेबर में 3 प्रोटॉन्स है तो ये आपको देगा क्वाड्रेट, एंड क्वाड्रेट इज गिवन, राइट. इसके नेबर में 1 प्रोटॉन है तो ये आपको डुप्लेट देगा, एंड डुप्लेट इज आल्सो गिवन. तो ये 2 पीक्स तो मुझे मिल गई, और ये भी आपको सिंगलेट देगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है. ओके. तो ये एलानिन का स्ट्रक्चर था. आपने नोट किया, आपको एक क्वाड्रेट और एक डबलेट मिल रही है, और स्पेक्ट्रम में भी एक डबलेट और एक क्वाड्रेट है. इसका मतलब ये दोनों पीक्स टैली हो गई. D2O की वजह से ये दोनों पीक्स क्या हो जाएंगी? दोनों सिंगलेट्स क्या हो जाएंगी? डिसअपीयर. सही है. तो हम यहां लिख देते हैं कि एलानिन gives quadrate and doublet. सही है. quadrate and doublet meaning after D2O addition only 2 peaks are left. ठीक है सनाम. और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं डबलेट इसलिए बिकॉज नेबर में 1 प्रोटॉन है. डबलेट मींस नेबर हैज 1 प्रोटॉन, क्योंकि वो आपसे स्प्लिटिंग पैटर्न पूछ रहा है इसलिए लिख कर देना जरूरी है. और क्वाड्रेट इसलिए बिकॉज नेबर में 3 प्रोटॉन्स हैं. क्वाड्रेट मींस neighbor has 3 protons. सही है. ये तो हो गया एलानिन. हम बात करते हैं अब ग्लूटामिक एसिड CH2 CH2 COH. ओके. ग्लूटामिक एसिड के लिए हम कलर डिफरेंट ले लेते हैं. ये है आपके पास NH2 CH COH CH2 CH2 COH. अच्छा भाई, सबसे पहली बात, ये आपको सिंगलेट देगा बिफोर D2O. ये भी सिंगलेट देगा, ये भी सिंगलेट देगा, और ये भी सिंगलेट देगा. जब D2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये तीनों सिंगलेट डिसअपीयर हो जाएंगी. अब इसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स है तो ये ट्रिपलेट देगा. इसके नेबर में 2 + 1 3 प्रोटॉन्स हैं तो ये क्वाड्रेट देगा. इसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स है तो ये ट्रिपलेट देगा. सो स्पेक्ट्रम में हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स आनी चाहिए एस्पार्टिक एसिड से रिलेटेड, विच इज नॉट गिवन. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड कैन नॉट गिव. जस्ट होल्ड इन अ सेकेंड. डबलेट मीनिंग ये ना लिखें, आई थिंक सो अननेसेसरी है क्योंकि स्प्लिटिंग मांग रहा है आपसे. आप क्या करें, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर यहाँ ले जाता हूँ. सही है. और इसको हम थोड़ा सा यहाँ अरेंज कर देते हैं. ठीक है जनाब.
सो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड gives two triplets which is not given in the spectrum. Which is not given in the spectrum. Okay. Next, the mass spectrum of glutamic acid is obtained. State the m by e value of the molecular ion peak in this spectrum. So guys, आप इसमें सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबको काउंट करें. टोटल मास आपके पास आएगा 147. फिर वो आपसे पूछ रहे हैं द मास स्पेक्ट्रम हैज पीक्स विद m by e value of 88 and 131. Draw the structure of the ion responsible for these peaks. Okay. ये है आपका NH2, फिर है CH और फिर है COOH. ये है आपके पास CH2, ये है आपके पास CH2 और ये है आपके पास COOH. ओके. तो इसका मास कितना होता है 45 और ये कितना है 28. तो 45 प्लस 28 देखते हैं कितना होता है. 45 प्लस 28 इज गोइंग टू बी 73. हमें तो 88 चाहिए. प्लस 13 और ऐड करके देखते हैं 86. ओके, ये तो नहीं बन रहा. तो 45 प्लस ट्रायल एंड एरर होगा. 45 प्लस 16 प्लस 13 74 नहीं बन रहा. 45 प्लस 28 प्लस 13 ये ट्रायल एंड एरर से बनेगा ये. ओके, हम इसको देखें. 45 CH 16 एंड दिस, इसको करके देखते हैं. ट्रायल एंड एरर है. पहले बेटा मैंने इन तीन को करके देखा, नहीं आया. फिर मैंने इन दो को इसको करके देखा, नहीं आया. अब मैं इसको करके देखता हूँ. ठीक है. 45 प्लस 13 प्लस 14 नहीं आया. ओके, इससे भी नहीं आया. ठीक है. अब हम एक काम करते हैं, इसको और इसको भी ऐड करके देखते हैं. ये हो जाएगा 45 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 14. Yes, that's the answer. This will give you 88 का fragment. This will give you 88. That's trial and error, guys. ठीक है. तो हम यहाँ लिख देते हैं NH2 CH COOH और ये हो जाएगा CH2 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. 131 का फ्रैगमेंट. अगेन ट्रायल एंड एरर. 131 का फ्रैगमेंट. 131 trial and error. 45 28 13. 45 plus 28 plus 13 is 86. 86 आ गए यहां तक. इसमें 45 और ऐड कर दो. 131. परफेक्ट. सो हम इसको दोबारा से बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं फ्रैगमेंट निकाल कहाँ से रहा हूँ, कौन सा फ्रैगमेंट निकाल रहा हूँ और हम लिख कैसे रहे हैं उसको. ये ट्रायल एंड एरर से होगा बेटा. आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा बहुत क्विकली. डायरेक्ट आंसर नहीं मिल सकता. ठीक है. तो मैंने नेक्स्ट फ्रैगमेंट जो है ना वो ये पूरा लिया है. ठीक है. दिस विल गिव यू 131. 147 कितना होता है और माइनस 131. ओह, आप ये भी कर सकते थे कि देखो मैंने एक ट्रिक निकाली. आपके पास क्या है 147 MR, राइट. और आपके पास फ्रैगमेंट कौन सा चाह रहा है वो 131 का. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 16. और 16 इस पूरे मॉलिक्यूल में किसका है
मास NH2 का है, इसका मतलब भाई NH2 को रिमूव कर दो तो 131 का फ्रेगमेंट आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे COOH, CH2, CH2, CH, COOH, और ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन राइट इट। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे एट pH 11 alanine exists as this ion and glutamic acid exists this ion, यानी इसके ऊपर चार्ज है -1 और इसके ऊपर चार्ज है 2-, तो ग्लूटामिक एसिड के ऊपर चार्ज ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे a mixture of alanine and glutamic acid at pH 11 is subjected to electrophoresis. State how the mixture can be maintained at pH 11. तो मैंने आपको याद है क्लास में बताया था कि हम बफर स्ट्रिप यूज करते हैं टू मेंटेन maintain the mobility of ions across the terminal. Since both of them are ions, तो इनकी mobility को control करने के लिए I will use buffer strip. So we use buffer strip. सही। उसके बाद draw a fully labeled diagram for the apparatus that would be used to carry out this electrophoresis. ओके तो ये हमने क्लास में करवाया है आपको, आप बना सकते हैं। एक ग्लास प्लेट लीजिए, सही है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर आप एगरोस जेल लगाइए। इस ग्लास के प्लेट के बिल्कुल सेंटर में शार्प पेंसिल से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए बफर स्ट्रिप लगाने के बाद। तो ये बफर स्ट्रिप हो गई आपके पास। एगरोस जेल भी लगा दिया आपने, तो पहले एगरोस जेल लगता है, फिर बफर स्ट्रिप लगती है, फिर आपके पास सेंटर ऑफ द बिल्कुल प्लेट में एक रेफरेंस लाइन पेंसिल से ड्रॉ होती है जिस मिक्सचर की एनालिसिस करनी होती है, उस मिक्सचर का एक स्पॉट, इस स्पॉट को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्ट कीजिए और इन क्रोकोडाइल क्लिप्स को कनेक्ट कर दीजिए आप बैटरी के साथ। तो मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और मान लीजिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? एनोड। ओके, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? कैथोड। ठीक है, ओके। और क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, इसका मतलब क्योंकि दोनों कहां ट्रेवल करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। अब इसमें से कौन सा ग्लूटामिक एसिड है और कौन सा एलानिन है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डिसाइड। आप जानते हैं कि एलानिन के ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो हमने बताया था कि जहां चार्ज ज्यादा होता है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका? ग्लूटामिक एसिड जिसको हम GLU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या होगा आपका? एलानिन जिसको हम ALA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स माय सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट देखते हैं कि एग्जामिनर आगे सवाल में क्या पूछ रहा है। दैट्स माय असेसमेंट। वो पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोड दैट ईच अमीनो एसिड ट्रेवल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग दिस। तो जाहिर सी बात है ये होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। In a particular electrophoresis experiment at pH 11, glutamic acid traveled 3.4 centimeter, alanine travels a shorter distance. Explain the factors that account for the difference in the distance traveled. अगर एलानिन ने शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब उसके पास चार्ज कम है, ठीक है। सो एलानिन has
only -1 charge. Whereas glutamic acid has 2- charge. Has 2- charge. ठीक है। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं हम कि ये जो एलेनिन हमारे पास है, इस एलेनिन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम होगा यकीनन, क्योंकि लाइटर मॉलिक्यूल है। सॉरी, एलेनिन कहाँ गया, ये रहा। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का पार्ट है तो वी नीड टू राइट दैट। ऑल्सो alanine has lower molecular mass than glutamic acid. Okay, ये 2 कर देते हैं, 2- charge. Okay, that's the end of the question. Move to question number 19. वो कह रहे हैं butyl amine can be synthesized from different organic compounds by using suitable reagents. Each reaction involves one step. Complete the table to describe 3 different syntheses. Okay, butyl amine amines. Oh, nitrile. गाइस, नाइट्राइल के थ्रू अमाइन आता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जो जो मैंने करा है। अमाइड के थ्रू एमाइन आता है। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड के थ्रू भी एमाइन बनता है। तो ये 3 मेथड हो गए। 1 बाय 1 सारे के सारे मेथड हम बता देते हैं आपको। बहुत सिंपल सा मेथड होगा। अल्काइल हैलाइड से एमाइन बनाने के लिए अमाइनो ब्रोमोब्यूटेन लूंगा मैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br। सही है। और रिएजेंट्स और कंडीशंस क्या होंगे भाई? अमोनिया यूज होगा इन एथेनॉल, ठीक है, सील ट्यूब में। अमाइड के लिए ब्यूटेरमाइड लूंगा, CH3 CH2 CH2 3 CONH2। ये है ब्यूटेनमाइड। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा उसमें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा। एमाइड से एमाइन में कन्वर्ट करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। सही है। कंडीशन आप यूज कर सकते हैं इन एथेनॉल, ये सॉल्वेंट होगा आपका। फिर नाइट्राइल यानी साइनोब्यूटेन यूज कर लो, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4। सही है। तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फॉर दैट आई नीड हाइड्रोजन गैस एज अ रिएजेंट एंड निकल कैटलिस्ट एज अ कंडीशन अंडर रिफ्लक्स। ठीक है जनाब। तो इसकी रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। इसकी रिडक्शन होगी तो सब कुछ एज इट इज आएगा, ये कन्वर्ट होगा CH2 में, इसकी जगह पे NH2 आ जाएगा। तो आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। Now the next is compare and explain the relative basicities of ammonia, butylamine and phenylamine. Most basic जो है वो butylamine, इससे कम जो है वो अमोनिया, और लीस्ट बेसिक जो है वो फिनाइलमाइन। हम पहले भी बता चुके हैं 3-4 मरतबा। 4 मार्क्स का पार्ट है, थोड़ा सा डिटेल से लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ब्यूटाइलमाइन इज मोस्ट बेसिक। ब्यूटाइलमाइन is most basic as electron donating alkyl group
because of its positive inductive effect this increases the availability of lone pair for protonation, right? In phenylamine, lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond of benzene, hence lone pair is not easily available for protonation. Okay, I think इसमें इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता. अब यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं. The easier the availability of lone pair, the stronger the base. The easier the availability of lone pair, the stronger the base. That's the end of question number, I think 9. Let's move on to the next question. It's a very small and short question. Let's finish this. Complete the table to show the structure of the organic product from each reaction of phenol. Phenol का जब NaOH से reaction होगा तो सोडियम फिन ऑक्साइड बनेगा. हम इस तरह से लिखेंगे इसको ONA. और ऑर्गेनिक पूछ रहा है इसलिए हम हाइड्रोजन गैस लिख के नहीं देंगे एग्जामिनर को. ठीक है. फिनोल एंड सोडियम कह रहे हैं तो अगेन सेम चीज बनेगी. सोडियम फिन ऑक्साइड बनेगा. दोबारा से इसी तरह से लिख लीजिए. आई थिंक ऑब्जर्वेशंस लेनी चाहिए थी मेरे लिहाज से, वरना ये दो चीजें एक ही दफा लिखवाने की कोई मतलब सेंस नहीं बनती. आई मीन यू हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन के यहाँ से वाटर मिल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिल रही है, सो दैट बच्चों को डिस्टिंग्विश करने में आसानी है. एनी हाउ बेंजीन डाइजोनियम आयन जब फिनोल से रिएक्शन करेगा बिलो 10 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एजोडाई वुड बी फॉर्म. तो एजोडाई हम इस तरह से लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N. ट्रिक समझा दी थी मैंने आपको क्लास में कि कैसे लिखोगे. मैंने आपको कहा था कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट कार्बन होती है उसके साथ बॉन्डिंग होगी, यानी एजो ग्रुप की उस कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी जिसके साथ बिल्कुल जिसके ऑपोजिट बिल्कुल OH ग्रुप होगा. एक्सेस ऑफ फिनोल है और एसाइल क्लोराइड है तो एस्टर बन जाएगा. तो ये हो जाएगा COO, ये बेंजीन रिंग और ये भी बेंजीन है. देन COO और ये बेंजीन रिंग यानी 2 मोल्स ऑफ HCl यहां से रिमूव हो रहे हैं. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. So whenever phenol and acyl halide react together, always esters are formed. ये मैंने क्लास में बाहर डिस्कस की है, रिएक्शन करवाया है मैंने, उसी रिएक्शन को यहाँ पर लिखा है. ठीक है. ये बेंजीन मैंने एज इट इज कॉपी किया है और यहाँ से HCl चला गया, यहाँ से भी HCl चला गया और उसी जगह पे फिन ऑक्साइड आयन अटैच हो गया. Identify 2 reactions from the table in which ethanol would behave in a similar way to phenol. जब इथेनॉल रिएक्शन करता है तो वो ऑब्वियसली एस्टर फॉर्म करता है. इथेनॉल सोडियम मेटल से भी रिएक्शन करेगा, आई एम सॉरी, सोडियम मेटल से भी रिएक्शन करता है और एसाइल हैलाइड से भी रिएक्शन करता है. ठीक है. सो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 2 रिएक्शंस, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 4. मैं रिमाइंडर दे दूं आपको एक मरतबा और
और रिमाइंडर ये है कि अल्कोहल एंड एसाइल हैलाइड रिएक्ट टुगेदर। एसाइल हैलाइड का मतलब समझते हो, COCl फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है, इसको तुम एसाइल क्लोराइड भी कहते हो। अल्कोहल एंड एसाइल हैलाइड react together to give ester। सही है, मैंने ये बात आपको A2 में पढ़ाई, A1 में भी पढ़ाई और A1 में ये भी बताया कि अल्कोहल reacts with sodium metal also to give hydrogen gas। तो फिनोल और अल्कोहल के ये दो रिएक्शन जो है ना वो सेम है। ऑलराइट, दैट्स ऑल from my end. Thank you very much. Let me know about